Hello class, today I am going to teach about the subject Commerce, class 10th, chapter Final Account. In the last video I have already discussed about the capital expenditure and revenue expenditure. And in this video we will discuss about the advantages of preparing final account. We know that when we prepare final account, before preparing final account, we have to check arithmetical accuracy of the book, and arithmetical accuracy of the book is tested by the trial balance. The next step is the final account. Final account include the three important account and statement. First is a trading account, second profit and loss account, and last we have to prepare balance sheet. Final account uh, helpful for to ascertain the profit and loss of any particular financial year, and second, financial position of the business. In this video we will discuss about the advantages of preparing final account. The major advantages of preparing final account to a sole trader can be stated as under. The main advantages of final account can be received by the sole traders. Sole traders have to need to prepare a final account to ascertain the profit and loss of business and financial position of a business and progress of the business. First is a determination of profit or loss. The first part of the final account deal with the preparing of trading and profit and loss account, which will enable the entrepreneur to determine the profit and loss for the financial year. It means that when the final accounts are prepared, तो वी हैव टू डील विद द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से को प्रिपेयर करना है. ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स को, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. अब हम इसमें पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है. ये दोनों अकाउंट्स जो है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, वो पर्सन होते हैं जो कि बिजनेस को मैनेज करते हैं. तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है कि वो डिटरमाइन करें किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, फाइनेंशियल ईयर में वो इस चीज़ को डिटरमाइन करें कि उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. सेकेंड पॉइंट इज अ determination of financial position of business. The preparation of the balance sheet help to determine the financial position of the business as on a particular date. The trader can easily find out whether his capital is increasing or decreasing as the case may be. It means that we have to determine the profit and loss account of the for a financial year. Secondly, we have to determine the financial position of the business. Both are different. Profit and loss amount are determined, that is a different. financial position करना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस फाइनेंशियल पोजीशन पर खड़ी है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना, बैलेंस शीट हमेशा जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर किया जाता है, बल्कि फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है उसमें मेंशन होता है. एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बट when we are going to discuss about a balance sheet, that is a very important to note that we have to prepare this balance sheet on a particular date. Date is an important particular date. The trader can easily find out. और हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेड करते हैं, जो डील करते हैं, वो बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हिज कैपिटल इज़ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एज द केस में भी. जो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके हिसाब से वो इंक्रीजिंग में जा रहे हैं या डिक्रीजिंग में जा रहे हैं. वी हैव टू ईजिली फाइंड आउट.
Third point is the information regarding the progress of business. अब फाइनल अकाउंट जो है दैट इज़ अ वेरी हेल्पफुल फॉर द ट्रेडर्स टू कैन इजीली फाइंड आउट द वेदर हिज बिजनेस इज डेवलपिंग सेटिस्फैक्ट्री और नॉट. तो बहुत ही इजीली जो है इस फाइनल अकाउंट से को प्रिपेयर करने के बाद वो इस चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनका जो बिजनेस है वो डेवलपिंग है, एक सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है. इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल होता है. तो इसमें क्या है कि प्रोग्रेस को जानना. प्रोग्रेस मतलब अगर हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया, वी हैव टू अर्न 50 लाख पर ईयर, बट वी कैन अचीव in any particular year more than 50 lakhs. देन वी कैन से दैट कि मेरा जो प्रोग्रेस लेवल है वो अच्छा है, या प्रोग्रेस हम कर रहे हैं बहुत ही एकदम स्लो रेट पर कर रहे हैं. अब किसी ने 50 लाख अपना टारगेट बनाया कि हमको साल भर में 50 लाख रुपीस हमारा प्रॉफिट होना चाहिए. अब उसको हो गया 80 लाख रुपए प्रॉफिट, मतलब उसको 30 लाख रुपए उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया. तो वो कहेगा कि उसके अंदर एक फीलिंग आएगी उस ट्रेडर्स के अंदर कि उसके जो डेवलप हुआ, जो प्रोग्रेस हुआ उसका बिजनेस, उसके एक्सपेक्टेशन से कितना परसेंट हुआ, 80% ज़्यादा हुआ. तो यही चीज़ होता है कि इस चीज़ को हम इस चीज़ फाइनल अकाउंट के हेल्प से वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इट एंड वी कैन इजीली नो अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस. फोर्थ पॉइंट इज़ हेल्पफुल टू वेरियस यूजर्स ग्रुप. अब बहुत सारे यूजर्स ग्रुप के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है क्या, फाइनल अकाउंट्स को जानना. A final account also prove very helpful to the various user groups like a supplier, tax authorities, creditors, etc. The lively example of this can be when a trader want to raise a loan from the bank, he will have to submit his balance sheet with the bank. Which will show the financial status and only then loan can be granted. तो ये फाइनल अकाउंट्स जो होता है, हमारे जितने भी एक्सटर्नल लोग होते हैं, एक्सटर्नल में कौन से हो सकते हैं, सप्लायर जिनसे हम गुड्स खरीद रहे हो, या टैक्स अथॉरिटीज़ हो रही जिनको हम टैक्स पे करना है, या क्रेडिटर्स हो गए. तो ये तीनों लोग, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, कस्टमर्स भी होते हैं. तो ये सारे लोग जो होते हैं वो फाइनल अकाउंट किसी भी जब कंपनी से डील करते हैं तो सबसे पहले उसका फाइनल अकाउंट चेक करते हैं. अगर फाइनल अकाउंट उनका सेटिस्फैक्ट्री है, फाइनल अकाउंट में वो प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, उनकी सिचुएशन मतलब अच्छी है, और तो सप्लायर्स भी हैं, उनको गुड्स सेल करने में बहुत ही मतलब इजीली गुड्स सप्लाई कर देंगे. टैक्स अथॉरिटीज़ है तो उनकी इनकम के हिसाब से टैक्स को डिडक्ट करेगी. क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स भी अपना रोल इसी तरह से कर देते हैं. तो यही ऑल ओवर मीन है कि कोई भी ट्रेडर्स है अगर उसको लोन चाहिए बैंक से, तो बैंक ऐसे किसी को लोन नहीं देती. बैंक सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट देखती है. अब बैलेंस शीट को देखते ही वो समझ जाती है कि बैंक जो है इस चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है. मतलब ये प्रॉफिट अच्छा इसका जा रहा है इस कंपनी का, या प्रॉफिट बहुत ही जा रहा है मगर बहुत ही लो रेट पे जा रहा है, तो उसी हिसाब से लोन भी मिलता है. नाउ द न्यू टॉपिक इज अ ट्रेडिंग अकाउंट्स. अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फाइनल अकाउंट के एडवांटेजेस पढ़ रहे थे. अब हमको पढ़ना है ट्रेडिंग अकाउंट्स है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिमेन पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना है, बैलेंस शीट पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. द ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच शो द रिजल्ट ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. It contains in a summarize from all the transaction occurred during a trading period which have direct relation to the goods dealt in by the business. Trading account is a part of the profit and loss account and is made at the end of the financial year. The heading of this account is written as follows.
तो ट्रेडिंग अकाउंट्स है क्या? अभी तक तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि उससे जो है हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाता है, प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है, मगर रियल में ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या है? तो ट्रेडिंग अकाउंट्स सबसे पहले ये क्या है? ये एक अकाउंट है और ये क्या शो करता है? ये इस चीज़ को शो करता है कि एक गुड्स को खरीदा गया कितने पर और गुड्स को सेल कितने पर किया गया। कोई भी गुड्स खरीद रहा है या कोई भी गुड्स सेल किया जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी तरह से समराइज करता है जितने भी ट्रांजैक्शन किसी एक पार्टिकुलर पीरियड में हुआ है, किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है बाइंग से रिलेटेड और सेलिंग से रिलेटेड, इन सबको समराइज किया जाता है हमें ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब एक हमने ले लिया है कि 1 मार्च से लेकर के 31 अप्रैल तक देखा कि एक बिजनेसमैन जो है उसने बहुत सारे गुड्स लाए, कार लिए, मशीन लिए, ये सारी चीज़ ख़रीदा। बहुत सारे अपनी जो ओल्ड वाली चीज़ हैं उसको सेल किया, बहुत सारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करके उसने सेल किया। तो ये सारी चीज़ कितना हमने ख़रीदा और कितना हमने सेल किया, इन सब का समराइज जो है वो किस में लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट्स में। मगर अभी हम लोगों को और जानना है कि किस टाइप का गुड्स और किस तरह का वो गुड्स जो भी गुड्स हो उसका डायरेक्ट रिलेशन हो, जो भी मतलब कि एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग पीरियड में कुछ भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो वो डायरेक्ट रिलेशन उसका गुड्स से हो। मतलब कि अगर हम एक मशीन ख़रीद रहे हैं तो मशीन कितने की ख़रीदा? 5 लाख की। मशीन ही सिर्फ नहीं ख़रीदते, मशीन के साथ साथ बहुत सारे खर्च भी उसके साथ इंक्लूड होते हैं। जैसे अब हमने किराया दिया, इंश्योरेंस कराया उस गुड्स का, उस गुड्स को पैकिंग में पैसा खर्च हुआ, उस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हो सकता हो कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो, दूसरी कंट्री से आ रही हो या दूसरे स्टेट से आ रहा हो, तो बहुत सारे इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो गुड्स को ख़रीदने में सिर्फ गुड्स का ही अमाउंट नहीं होता, बहुत सारे ट्रांजैक्शन अमाउंट भी उसमें जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए ओवरऑल जितना भी डायरेक्ट रिलेशन है, एक्सपेंसेस है उस गुड्स से रिलेटेड, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक पार्ट है एंड इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसको भी हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का उसको किस तरह समझेंगे? ये एक स्पेसिमेन है। इसमें जो है हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दो साइड है। राइट हैंड साइड क्या लिखेंगे हम? क्रेडिट लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट। अब इसमें जो है बहुत सारे, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है? 2, इधर साइड 2 लिखना है, इधर साइड बाई लिखना है। क्रेडिट साइड हमको बाई लिखना है, डेबिट साइड हमको 2 लिखना है। अब 2 ओपनिंग स्टॉक भी हम लोग पढ़ेंगे। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? 2 परचेजेस लेस क्या है? यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड है, वेजेस है, कैरेज है, रेलवे फ्रेट है जो रेलवे में खर्च हो रहा, कोल, गैस, वाटर्स है, ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस है। बहुत सारी गुड्स बाहर से जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसमें ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी, क्लियरिंग हाउसेस चार्जेस लगते हैं। पावर एंड फ्यूल हुआ, इलेक्ट्रिक चार्जेस हुआ, फैक्ट्री रेंट दिया गया, फैक्ट्री लाइटिंग, इधर सारे एक्सपेंसेस हो, ऑक्टोरियो, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। इधर क्या है? सेल, अगर हमने सेल किया है कोई भी गुड तो सेल लिखेंगे, मैंने सेल रिटर्न होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा एंड ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र टू द प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट होगा तो उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे, मगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग लिखेंगे। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक इस तरह समझा जा सकता है कि जब हम किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई गुड्स को ख़रीदा, अब हो सकता हो कि 32,000 का हमने गुड्स ख़रीदा और उसमें से 8,000 का गुड्स जो है वो हमारा अनसोल्ड हुआ, नहीं बिका। तो अब नहीं बिका इस साल, तो नेक्स्ट ईयर जो है वो 8,000 का जो स्टॉक होगा वो हमारे पास रखा हुआ है। अब वो 8,000 नेक्स्ट ईयर में वो हमारा बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। एकदम सिमिलरली समझना है कि कोई भी गुड्स हमने ख़रीदा फाइनेंशियल ईयर में, किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 32,000 का, अब हो सकता हो साल भर
में से उसमें 8,000 जो अमाउंट का गुड है वो नहीं बिका या नहीं सेल हुआ या वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में था, वो रखा रह गया। जब हम लोग नेक्स्ट ईयर जब गुड्स को वो करेंगे, जब नया अकाउंटिंग ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाएंगे, तो ये 8,000 रुपये क्या बन जाएगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक। जैसे इस साल का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो ये समझना ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो कि अनसोल्ड हो गया हो किसी भी फाइनेंशियल पीरियड के एंड में, उसी को क्या कहा जाता है, पहले वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, नेक्स्ट ईयर में जो होता है उसको एक ओपनिंग स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाएगा। परचेसेस इंक्लूड ऑल द गुड्स विच आर आइदर परचेज फॉर रीसेल और यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। परचेजेस में क्या, वो सारे गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा जो कि हमने रीसेल के लिए परचेज किया हो या उस गुड्स को परचेज किया हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। परचेजेस इज डन ऑन कैश बेसिस पे परचेजेस हो, या तो फिर वो कैश पर हम परचेज करें। कुछ गुड्स हम परचेज करते हैं तो कैश डायरेक्ट देते हैं और गुड्स हम खरीद लेते हैं। कुछ गुड्स होता है, कभी कभी हम लोग गुड्स क्रेडिट पर, उधार पर परचेज करते हैं, तो वो परचेजेस हो जाएगा। वो सारी चीज़ गुड्स को दो फॉर्म में परचेज किया जाता है, पहला कैश बेसिस पर, सेकेंडली क्रेडिट बेसिस पर। एनी गुड्स विच आर आइदर नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन और हैव सम डिफेक्ट आर सेंड बैक टू द सेलर। अब कभी कभी होता है कि गुड्स को जो हमने परचेज़ किया है, हो सकता हो कि हमारे वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से या उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया हो, कुछ कमी आ गई हो, या हमने जब गुड्स ख़रीदा तो उस टाइम नहीं देखा, बाद में देखा रही ये डिफेक्टिव आइटम है, ये मशीनरी है तो बाद में अच्छे से प्रॉपर चल नहीं रहा है, तो उस गुड्स को क्या कर देते हैं हम लोग, रिटर्न कर देंगे। जो भी गुड्स अगर रिटर्न हो जाएगा तो उसको माइनस कर दिया जाएगा जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, जो भी गुड्स खरीदा जाता है अगर उसके साथ जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस भी हो सकता है, पावर, कोल हो जाता है, ऑक्टोरियो, फ्रेट, कैरेज, सारी चीज़ जो होता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, वो सारी चीज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। और उसको हमेशा हम लोग कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड शो किया जाता है। पैकिंग, अब पैकिंग भी एक तरह से एक्सपेंसेस है। क्यों, हर एक इस गुड्स की एक अलग तरह से रिक्वायरमेंट होती है पैकिंग की, तो उस तरह के गुड्स को जो पैकिंग अगर एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैकिंग मटेरियल में एक्सपेंसेस हुआ है, दैट आर एडेड इनटू द डेबिट साइड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स, अब ये हमारा क्या है, क्रेडिट साइड का सारे आइटम है। कुछ गुड्स हमने सेल किया, सेल करने के बाद हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो उस सेल को हम लोग सेल अकाउंट में डाल देंगे, क्रेडिट साइड इंक्लूड कर देंगे। कभी कभी सेल किया तो कस्टमर्स जो थे वो किसी रीज़न से उस गुड्स को रिटर्न कर दिए, अगर गुड्स को रिटर्न कर दिए तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सेल में से सेल रिटर्न, उसको बोलते हैं सेल रिटर्न, जो कस्टमर उसको वापस कर दे, तो ये होगा सेल रिटर्न। इन दोनों को माइनस करने हमारे पास बचेगा नेट सेल। ये सेल क्या होगा, ये सेल कभी कभी कैश के फॉर्म में भी होता है, क्रेडिट के भी फॉर्म में होता है, हमेशा इसको ट्रेडिंग साइड में शो किया जाता है। अब क्लोजिंग स्टॉक जैसे अभी हमने ओपनिंग स्टॉक बताया था कि गुड्स हमारा सोल्ड ना हुआ हो, तो अब एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहे हैं, वहाँ पर हमारा गुड्स सोल्ड नहीं हुआ है, तो एंड में क्या करते हैं, लास्ट के एंड में वी हैव टू 8,000 का गुड्स जो है हमारा नहीं सेल हुआ, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। अब यही क्लोजिंग स्टॉक, दोनों चीज़ एक ही है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही 8,000 है, मगर फ़र्क क्या है, जिस करंट ईयर में ये गुड्स नहीं बिका तो उसको हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, और फिर नेक्स्ट ईयर में यही क्लोजिंग स्टॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक में। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट। फिर इसके बाद लास्ट में क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। अगर हमारा डेबिट साइड जो है वो हमारा मोर देन है क्रेडिट साइड से, तो डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड, मतलब हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा, डेबिट साइड हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड हम क्या लिख रहे हैं, इनकम। तो हमारा एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है हमारे इनकम से, इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है, तो उस चीज़ को हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा बाय ग्रॉस लॉस के नाम से, जो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
सिमिलरली अगर हमारा सेल साइड ज़्यादा है, मतलब सेल ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंसेस कम है, तो वो प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट को हम किधर लिख देंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कहाँ पे आपको ग्रॉस लॉस करना है, कैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। जब डेबिट साइड इज़ मोर देन द क्रेडिट साइड, तो उस कंडीशन में ग्रॉस लॉस होगा, क्योंकि हमेशा याद रखो डेबिट साइड क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, इनकम कम होगा, तो जाहिर सी बात है लॉस होगा। लॉस हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। सिमिलरली अगर एक्सपेंसेस इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो वी हैव टू देन वी कैन से दैट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस account. I hope you can understand very well. You have any doubt, you can ask me question. Thank you.